Good morning, class 3 students. Welcome back to online class. Today we will study computer. So open your computer book, page number 26, chapter number 5, input and output devices. So through this chapter we will learn about different types of input and output devices and their functions. Okay? And now I am reading this chapter. So what you will do, you will repeat after me. Okay, so students, आज पेज नंबर 26 से चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर बुक से। सो अपनी कंप्यूटर की बुक खोलेंगे, पेज नंबर 26 खोलेंगे और चैप्टर नंबर 5 इनपुट और एंड आउटपुट डिवाइसेस। सो इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग तरीके के इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और उसके काम करने के तरीके, इन सब चीजों को जानेंगे। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा कि इसको रीडिंग करूंगा और साथ ही साथ आप लोग भी रीड करेंगे। ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। ठीक है, सो नाउ रिपीट आफ्टर मी। ओके, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। मेरे पीछे बोलिए, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। गुड। हियर you will know about various input and output devices. Input devices. Input devices are used to enter information or data into the computer. Keyboard, mouse, scanner, joystick are examples of input devices. Let us discuss about keyboard and mouse. Keyboard. Keyboard is one of the most common input devices for computer. It is like a typewriter. When you press a key, it gets a contact, and when you release, it gets released from the contact. Thus, various keys generate different patterns that we recognize as alphabet, numbers, symbols, and other commands. Oh, now turn to the next page. Next page पे चलेंगे. Page number 27. Mouse. A mouse is an input device that is used to point and select an option on the monitor screen. A mouse generally has two buttons and a scroll wheel. The left button is used for selection. The right button is used to display various options. Scroll wheel is used to move the page up and down. Mouse performs 4 actions. First is single click to press and release the left mouse button once. Double click to press and release the left mouse button twice quickly. Right click
to press and release the right mouse button once. Drag and drop. Select the text or icon holding down the left mouse button. Move it to another location and release the mouse button. Now, pointer. Pointer is a small arrow symbol that moves and points on a computer screen. The pointer changes its shapes when any tool is selected. Some common pointers shapes are as follows. Next page पे जाएंगे. Turn to the next page. Page number 28. Arrow. It helps you to select an item. Hourglass. It tells you that the selected item is opening. Cursor. It tells you that it is ready to start typing on the computer. So till here we will finish reading. So now today we will read till input devices, till here, okay? So in the next class we will read output devices, we will learn about output devices, okay? So today's class, in today's class we will read or learn only input devices, okay? And output devices in the next class. So students, आज हम लोग सिर्फ यहीं तक पढ़े हैं, इनपुट डिवाइसेस के बारे में ही आज पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम लोग आउटपुट डिवाइस इसके आगे की क्लासेस में इसके आगे का चैप्टर देखेंगे, ठीक है, अगली वीडियो क्लास में, ठीक है. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर इन हिंदी ऑल्सो, सो लिसन केयरफुली. स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और सारा चैप्टर बता देता हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान देके सुनिएगा, ओके. तो चलिए, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इस चैप्टर में आप लोग Here you will know about various input and output devices. इस जगह पे, इस चैप्टर पे आप लोग अलग अलग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे. इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन और डेटा इनटू द कंप्यूटर. इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को या इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए, कंप्यूटर में डालने के लिए. कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक्स, ये एग्जाम्पल हैं इनपुट डिवाइसेस के. लेट अस डिस्कस अबाउट कीबोर्ड एंड माउस. चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कीबोर्ड और माउस के बारे में. कीबोर्ड. कीबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस फॉर कंप्यूटर. कीबोर्ड जो है वो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का. इट इज लाइक ए टाइपराइटर, और ये टाइपराइटर के जैसा है, इसमें बटन्स होते हैं जैसे टाइपराइटर में होते हैं. व्हेन यू प्रेस ए की, जब हम इसमें से कोई एक बटन दबाते हैं, इट गेट ए कॉन्टैक्ट एंड व्हेन यू रिलीज इट गेट रिलीज फ्रॉम द कॉन्टैक्ट. और जब हम इसको बटन दबाते हैं तो ये कॉन्टैक्ट करता है, शायद नीचे में कुछ होगा उससे कॉन्टैक्ट करता है, और जब हम इसको छोड़ते हैं तो वो कॉन्टैक्ट छूट जाता है. तो मतलब नीचे एक बटन है, नीचे कुछ चीज है जो उससे टच होता है और उसके बाद कुछ काम होता है. Thus, various keys generate different patterns that we recognize as alphabet, numbers, symbols and other commands. और हर एक बटन का अपना पैटर्न है.
जब हम दबाते हैं तो एक अलग पैटर्न है और इसी को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं अल्फाबेट के रूप में, नंबर के रूप में, या सिंबल के रूप में, या दूसरे कमांड्स के रूप में। तो हर बटन का एक अपना पैटर्न है। इस पैटर्न को हम अल्फाबेट समझते हैं, या फिर नंबर समझते हैं, या फिर सिंबल समझते हैं, या दूसरे कमांड समझते हैं, जैसे कि कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है। तो ऐसा टाइप का कॉम्बिनेशन या पैटर्न है, ठीक है। नेक्स्ट इज माउस। अगला है माउस। ए माउस इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू पॉइंट एंड सेलेक्ट एन ऑप्शन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और इसका काम क्या है? इसका काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को, स्क्रीन में कोई भी चीज को पॉइंट करना या फिर उसको सेलेक्ट करना, ठीक है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी चीज को पॉइंट करना या सेलेक्ट करने का काम माउस करता है और माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो चलिए देखते हैं इसके कितने बटन्स हैं। ए माउस जनरली हैज 2 buttons एंड ए स्क्रॉल व्हील। माउस के जनरली 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है। देखिए एक बटन इधर साइड में, एक बटन इधर साइड में, और ये स्क्रॉल व्हील है। तो दिस इज राइट बटन, दिस इज लेफ्ट बटन एंड दिस वन इज स्क्रॉल व्हील। तो माउस में जनरली 2 ही बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है। एक साइड में इधर वाले बटन को बोलेंगे राइट बटन, इधर वाले बटन को बोलेंगे लेफ्ट बटन, और ये वाला स्क्रॉल व्हील। लेफ्ट बटन इज यूज फॉर सिलेक्शन। ये वाला जो लेफ्ट बटन है ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राइट बटन इज यूज टू डिस्प्ले वेरियस ऑप्शन, और राइट वाला जो बटन है इसका काम है अलग अलग ऑप्शंस को दिखाना। उसके बाद स्क्रॉल व्हील इज यूज टू मूव द पेज अप एंड डाउन, और स्क्रॉल व्हील का काम क्या है? पेज को ऊपर नीचे करना। इसको घुमाएंगे तो पेज ऊपर नीचे होगा। नाउ माउस परफॉर्म्स 4 एक्शंस। माउस जो है वो 4 तरीके के एक्शंस परफॉर्म करता है, मतलब 4 तरीके के काम हम माउस से कर सकते हैं। क्या क्या टाइप के काम है, क्या क्या एक्शंस हैं उसके? पहला एक्शन है सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक to press and release the left mouse button once। तो सिंगल क्लिक है मतलब कि एक बार माउस का बटन दबाना और उसको छोड़ना सिंगल क्लिक कहलाएगा। तो कौन सा माउस बटन दबाना? लेफ्ट माउस बटन दबाना एक बार, सिंगल क्लिक कहलाएगा, ठीक है। तो इधर वाला माउस बटन दबाएंगे, एक बार दबा के छोड़ देंगे, दैट इज सिंगल क्लिक। इधर वाला नहीं, इधर वाला। Next one is double click. To press and release the left mouse button twice quickly. तो राइट और लेफ्ट माउस बटन, ये वाला बटन को 2 बार दबाना जल्दी जल्दी, कहलाएगा डबल क्लिक, ठीक है। तो ये वाले बटन को 2 बार दबाना जल्दी जल्दी, वो कहलाएगा डबल क्लिक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज राइट क्लिक। टू प्रेस एंड रिलीज द राइट माउस बटन वंस इज कॉल्ड राइट क्लिक। अब इधर वाले बटन को एक बार दबाएंगे, तो वो कहलाएगा राइट क्लिक, ठीक है। ये राइट क्लिक, ये लेफ्ट क्लिक, और इसको 2 बार दबा देंगे तो डबल क्लिक। उसके बाद है ड्रैग एंड ड्रॉप। सेलेक्ट द टेक्स्ट और आइकन होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन, मूव इट टू अनदर लोकेशन एंड रिलीज द माउस बटन। अब क्या करना है कि अगर हम किसी चीज को, टेक्स्ट को या आइकन को किसी चीज पे माउस पॉइंटर रख के उसको मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उसको दबा के मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरी जगह पे उसको छोड़ देते हैं, तो ये कहलाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप। पॉइंटर। Pointer is a small arrow symbol that moves and points on a computer screen. Pointer जो है छोटा एरो सिंबल है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंट करता है या मूव करता है। तो
वो पॉइंटर कहलाएगा। जैसे ये माउस पॉइंटर है, ये जो एरो दिख रहा है व्हाइट वाला आपको, ये इधर उधर घूम रहा है, सो दिस इज ऑल्सो ए माउस पॉइंटर, ये एक माउस पॉइंटर है। The pointer changes its shapes when any tool is selected. Some common pointer shapes are follows. Pointer tool जो है ये पॉइंटर का जो डिजाइन है ये चेंज होता है जब हम कोई और शेप को सेलेक्ट करते हैं, अलग अलग शेप्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट इज एरो, देख रहे हैं सेम ऐसा ही है। सो इट हेल्प्स यू टू सेलेक्ट एन आइटम। तो एरो की का काम है किसी ऑब्जेक्ट को या किसी आइटम को सेलेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर ग्लास। इट टेल्स यू दैट सेलेक्टेड आइटम इज ओपनिंग। तो इस तरीके का आइकन अगर आता है आपके स्क्रीन पर तो इसका मतलब है कि कुछ खुल रहा है। चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे कोई फोटो हो या कुछ भी। तो इस तरीके का आइकन आएगा, इसका मतलब खुल रहा है। थर्ड इज कर्सर। इट टेल्स यू दैट इट इज रेडी टू स्टार्ट टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। और इस तरीके का आइकन आएगा तो इसका मतलब है कि कुछ चीज टाइप करने के लिए अब रेडी है, अब इसके बाद आप टाइप कर सकते हैं, आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। सो यू कैन टाइप थ्रू द कीबोर्ड इफ दिस आइकन कम्स। अगर ये आइकन आता है तो इसका मतलब है आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। सो यू कैन टाइप फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप टाइप कर सकते हैं। ओके, सो we learn about some input devices. Input devices के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना। So we will learn some different types of input devices also. हम लोग कुछ और input devices के बारे में जानेंगे। जैसे कि स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन, these are also input devices. ये सब भी input devices हैं। तो input devices होती क्या हैं एक्चुअली? चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस होती क्या है? सो इनपुट डिवाइसेस आर दैट डिवाइसेस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड डेटा टू द कंप्यूटर। तो वैसे इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। जस्ट लाइक आवर ह्यूमन बॉडी। जैसे हम लोग के ह्यूमन बॉडी में इंफॉर्मेशन एंटर्स थ्रू द ब्रेन। हम लोग सॉरी इंफॉर्मेशन enter in the brain through different types of organs like eyes, ears, nose, tongue, skin. So हमारे दिमाग में जैसे हम लोग भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती हैं। तो कैसे आती हैं? आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा या फिर स्किन के द्वारा, है ना? Like through eyes we can get the information about the things. हम लोग आंखों से कुछ सारी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, जैसे कि कलर, हम we can know about some colors. Means what kind of color is this, ये कलर कैसा है, ये हम लोग ये बात समझते हैं आंख से देख करके। हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता कर लेते हैं, वो चीज कितनी दूरी पर है उसको देख करके। या फिर साइज या फिर वॉल्यूम, ये सब हम लोग देख करके पता कर सकते हैं कि कितना साइज का है, इज बिगर और स्मॉलर, राइट? तो ये देख सकते हैं, ये पता कर सकते हैं, साथ ही साथ वॉल्यूम पता कर सकते हैं। तो ईयर्स, लाइक ईयर्स वी कैन गेट द वॉइस इंफॉर्मेशन। कान से हम लोग वॉइस इंफॉर्मेशन लेते हैं, कमांड लेते हैं। थ्रू नोज वी कैन गेट द स्मेल। तो हम लोग नाक से क्या करते हैं? स्मेल लेते हैं। तो स्मेल टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है, वेदर द फूड इज गुड और गुड टू ईट और स्टेल समथिंग। तो नाक से हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं कि खाना जो है वो अच्छा है कि नहीं, अच्छी खुशबू आ रही है कि नहीं, वो खाना अच्छा है या फिर बासी है, या फिर अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स। सो एंड थ्रू टंग, हम लोग की जीभ से वी कैन गेट द टेस्ट इंफॉर्मेशन। जीभ से हम लोग टेस्ट की इंफॉर्मेशन लेते हैं, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है।
Through skin we can get information of temperature, softness, etc. So हम लोग स्किन से टेम्परेचर इंफॉर्मेशन लेते हैं, चीजें गर्म है या ठंडी है या सॉफ्ट है, इस टाइप का. सो इन ए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इंटर्स थ्रू द इनपुट डिवाइसेस. अब कंप्यूटर में भी इसी इनपुट डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन जाती है. ठीक है. सो अब आप समझ गए होंगे कि इनपुट डिवाइसेस आर दैट डिवाइसेस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देने वाली जो चीजें हैं जिससे कंप्यूटर में कुछ जाता है इंफॉर्मेशन, वो कहलाता है इनपुट डिवाइसेस. ओके, लेट्स सी सम डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस. द फर्स्ट विल सी स्कैनर. सी दिस इज स्कैनर. Scanner is used to convert text or its electronic representation, which can be viewed on the monitor. Okay, a scanner is like photocopy machine. See, this is. तो स्कैनर जो है वो एक फोटोकॉपी मशीन की तरह है और ये टेक्स्ट या फिर पिक्चर को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन में, कंप्यूटर में डाल देता है. ओके, तो वी ऑल नो अबाउट स्कैनर और फोटोकॉपी मशीन. हम लोग जानते हैं फोटोकॉपी मशीन और देखे भी हैं, है ना? देखे हैं ना आप लोग? राइट. सो नाउ लेट्स सी माइक्रोफोन. वी यूज स्पीक over a microphone. We can record our voice and other sound into the computer. So through जो है थ्रू माइक्रोफोन हम लोग क्या करें, कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं उसको हम कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई अदर साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं कंप्यूटर में. तो आप माइक को देखे ही हैं, माइक जानते ही हैं. तो माइक भी एक इनपुट डिवाइस है. इससे हम लोग कंप्यूटर में वॉइस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. सो नाउ नेक्स्ट वन इज light pen. See, this is light pen, and a light pen is an input device which is similar to mouse, and it is used to draw any figure directly on the screen. So light pen क्या है? वो भी एक input device है और ये भी माउस के जैसा सिमिलर है, माउस ही के जैसा है. और इसका इस्तेमाल किया जाता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे डायरेक्टली कुछ भी बनाने के लिए. जैसे कि ये देखिए एग्जाम दे रहा है, ये देख रहे हैं एग्जाम दे रहा है. तो डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं कोई फिगर. तो लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइसेस है. तो अभी तक हम लोग कितने इनपुट डिवाइसेस को देखे? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, एंड देयर इज जॉयस्टिक्स ऑल्सो. जॉयस्टिक का काम है गेम खेलने के लिए. सो ए जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस which helps in playing computer games, and it has one or more button on it. So joystick भी एक input device है और इसका इस्तेमाल गेम खेलने के लिए किया जाता है, लंबा सा होता है. Okay, so now we will finish till input devices. अब हम लोगों ने input devices तक खत्म कर लिया है. तो अब हम लोग output devices next class में पढ़ेंगे. Okay? So now your homework is question number 2. Rearrange letters from the to form sensible words. इसको rearrange करना है. जैसे first one is keyboard. इसको आप rearrange करेंगे अपने से. Okay? और what you will do, just click write down on your book and click a photo and send it to my WhatsApp number. और आपको इसको लिखना होगा अपने बुक में और फिर फोटो खींच के आप मुझे भेज दीजिएगा WhatsApp नंबर पे. ठीक है? And question number 5 is also your homework. Question number this one 2 and question number 5 is your homework. Okay, so this is for all today students. So keep learning, keep studying, and be safe. Have a great day. Thank you for watching.